પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. At the outset, I would like to express my deep and sincere gratitude to Shri Mahavir Jain Vidyalay in general and Shri Alpesh Bhai in particular for having me here, for giving me this opportunity to share my thoughts on data analytics and artificial intelligence with all students, office bearers and past students, illustrious past students of the Vidyalay. मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे पास स्पीकर्स के लिए who have left us spellbound and so much enriched with knowledge. श्री हितेश भाई एंड श्री जैन भाई, कमाल की नॉलेज, कमाल की इंसाइट्स उन्होंने हमको दी एंड वी आर सो मच इंडेप्टेड टू देम. Before I start my talk, I'll give you a little background about what I'm going to speak. I'm a practicing chartered accountant. I qualified in the year 2002, and since then I've been practicing as a chartered accountant. Today I'm a partner and leader in my firm Shashikant J. Shah & Company Chartered Accountants, which was founded by Shri Shashikant Bhai, who is my father. I'm humbled to share with you that this July 2024 we completed 50 years of uninterrupted practice. As a chartered accountant हम ऑडिट और टैक्स तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ बात ये है कि हम नया क्या करते हैं या हम पुरानी ही चीज़ों को किस तरह से नए अंदाज से करते हैं. This reminds me of my interaction at Infosys with Shri Narayan Murthy. This was about 15 years back. We were a group of chartered accountants. I'm going to keep on alternating between Hindi and English. I'm sure everybody is comfortable with both the languages. Thank you. Thank you for your feedback. About 15 years back, we were at Bangalore, and when we were at Bangalore, at Infosys, we got an opportunity to meet and interact with Shri Narayan Murthy. मूर्ति साहब को इस देश में कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है. Everybody knows Mr. Murthy. During our interactions, Mr. Murthy shared a very interesting aspect about Infosys. He told us that at Infosys we live by the saying, and this is what he quoted, quote, "In God we trust. Everybody else brings data to the table." Unquote. In God we trust. Everybody else brings data to the table. What is it that the governance at Infosys is communicating to the senior most management over there? Anybody and everybody who enters this boardroom and who believe that they have a point to make. If you believe that your strategies can help us earn a larger market share, can help us reduce cost, or can help us increase profits, then support your contention with data. If you don't do that, then sorry, we are not going to trust you unless, of course, you are God. In God we trust. Everybody else brings data to the table. सर, मुझे लगता है कि हमारे नए प्रोडक्ट का रेट या प्राइस X होना चाहिए. क्यों X? क्योंकि सर ये मेरी गट फीलिंग है. हाँ,
सॉरी, लेकिन इंफोसिस में निर्णय आपकी गट फीलिंग पे नहीं लिए जाते। इंफोसिस में निर्णय लिए जाते हैं डेटा के आधार पे। वाह! We were a group of chartered accountants, and that evening, when I retired back to my hotel room, I reflected over what Mr. Murthy had to communicate to us. Mr. Murthy is very, very clear. Data-based decision making is what the world is moving towards. जब डेटा को एनालाइज करके, यानी एनालिसिस के लिए हिंदी शब्द क्या है? एनीबडी? एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी, राइट? समीक्षा। अरे यस और नो? जब डेटा की समीक्षा के आधार पे बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं तो एक कंप्लीटली नई फैकल्टी का जन्म होता है जिसे बिजनेस एनालिटिक्स या प्यार से BA कहा जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स। वाव! बिजनेस एनालिटिक्स ये अपने आप में एक बड़ा साइंस है। एंड लाइक एवरी अदर साइंस, इट नीड्स पीपल, it needs processes, and it needs technology. Sir, people, yes, those people who are professionals who will use technology to convert data into information and information into actionable insights. लेकिन सिर्फ people और technology से बात नहीं बनेगी जब तक हमारे पास processes ना हो। Processes refers to all your math, to all your formulas, to all your steps that you are going to systematically apply on the data to convert that data into information and information into insights. पिछले करीब 14 से 15 साल से हम बिजनेस एनालिटिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे सेशन में आई एम गोइंग टू गिव यू हियर ऑन द स्क्रीन, पुट ऑन द स्क्रीन some examples, some case studies on how we converted some real life data into information, and from that information we gathered insights. Insights मिलने के बाद लास्ट स्टेप होता है वो इंसाइट्स पे एक्ट करके एक बिजनेस डिसीजन लेना। तो ये पूरी की पूरी एक बिजनेस एनालिटिक्स में साइकिल होती है। ये मेरी टॉक का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर यहां मैं अपने मित्रों से पूछूं कि हम में से कितने छात्र AI में एक फॉर्मल कोचिंग ले रहे हैं, वो हाथ ऊपर करें। कैन आई सी देम? हाउ मेनी ऑफ अस आर टेकिंग अ फॉर्मल कोच स्टडी इनटू AI? मे आई सी दोस हैंड्स? 1 2 3 सुपर। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ, मैं महावीर जैन विद्यालय अंधेरी था और वहां जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा, कई सारे छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेजर करके इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये सबसे पहले हम लोग समझे और उसके बाद उस पे भी समय मिलते हुए हम कुछ केस स्टडीज की बात करेंगे। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटेशन, calculation, then you will realize that human mind, ये calculations कैसे evolve हुए। तो human mind started calculating in very very primitive times. In fact, अभी इंटरनेट पे एक स्टडी किया गया जहां लोगों से पूछा गया कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड
मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? You know what? One of the most interesting answers was 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2 is one of the most complicated mathematical equation. Yes, and this is what the person explains. Actually, सृष्टि में एक गाय है और एक गाय है और एक गाय है. मतलब 2 या 3 ये सिर्फ हमारे माइंड में हो रहा है. वाओ. There are no 2 cows. There are no 2 buffaloes. There is 1 buffalo and there is 1 buffalo, which means most calculations happen in our mind. This is how human mind started computing. उसके बाद कैलकुलेटर्स आए, कैलकुलेटर्स के बाद कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सफर हम लोग ने तय करना शुरू किया. कैलकुलेटर्स में वो क्या खास है? सर, कैलकुलेटर्स कैलकुलेशंस फास्ट करते हैं. तो कंप्यूटर्स में ऐसा क्या है जो कैलकुलेटर्स में नहीं है? वेल, कंप्यूटर्स में लॉजिक यानी एनालिटिकल लॉजिक है जो कैलकुलेटर में नहीं है. 5 + 3 = 8. ये आंसर आपको कैलकुलेटर भी देगा और ये आंसर आपको कंप्यूटर भी देगा. लेकिन 7 + 9, अगेन दिस आंसर 16 आपको कैलकुलेटर और कंप्यूटर देगा. कैलकुलेटर में ये जानने की क्षमता नहीं है दैट 16 इज ग्रेटर देन 8. कंप्यूटर्स में ये बताने की क्षमता है. कंप्यूटर्स हैव एन एनालिटिकल लॉजिकल कैपेबिलिटी. सर, एनालिटिकल लॉजिकल कैपेबिलिटी कंप्यूटर्स तक आ गए. अब इस युग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर्स कितने भी पावरफुल हो, कंप्यूटर्स में कितनी भी एनालिटिकल क्षमता हो, लॉजिकल क्षमता हो, लेकिन कंप्यूटर्स में एक मेजर खामी है, एक मेजर चैलेंज है, जो चैलेंज के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हुआ. आई वुड टेक अ पॉज ओवर हियर एंड आस्क माय फ्रेंड्स, व्हाट डू यू बिलीव इज अ मेजर इश्यू, मेजर प्रॉब्लम with computers, and why did human mind started thinking of artificial intelligence? Anybody? May I see some hands? May I see some? Yes, my friend. They don't have emotions. While artificial intelligence has emotions? I don't know. I'm just thinking loudly. I'm thinking loudly with all of you. Yes, computers don't have emotions, and that's why we started thinking about artificial intelligence. Is it? Anybody else? Instead of me saying wrong, right, let us first collate thoughts. Yes. उस बड़े का करना क्या है उसको नहीं पता है. So while they have an logical mind, they don't know where to apply that logic and what to do with it. Is a very interesting answer. What's your name? Akshat. Super. Anybody else? Yes. Computer needs an operator, but AI does not need any operator, is what one of the thought processes. I'm only aggregating, collecting your thoughts. One more final thought, after which I will aggregate and give my 2 cents worth on it. Yes. Your good name. जो ह्यूमन होते हैं वो हर रोज कोई इजी टास्क चाहते हैं कि जो काम हो वो इजी हो. नाउ बीट ज़ेप्टो, लाइक 10 मिनट डिलीवरी, या बीट स्विगी. सो एवरीवन नीड्स टू मेक देयर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल. बट जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग में हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और वो सब करते थे, लेकिन हमें लाइफ इजी बनाने के लिए हमने एआई की सोची कि लाइक समथिंग दैट मेक इट इजियर फॉर आवर लाइफ एंड एवरीथिंग. Because humans want easy life, comfort life, we thought about AI.
computers were unable to do that is what my friend has to say. Is very interesting. Well, friends, let me give you a case study on this, on the birth of AI. होंडा कंपनी ने एक रोबोट का आविष्कार सन 2008-9 में किया. वो रोबोट दुनिया भर में घूम रहा था और वो घूमते घूमते यहाँ भारतवर्ष भी आया. जब वो इंडिया में आया तो वो स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहा था और ये पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है. वो स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहा था और ये रोबोट की स्पेशलिटी क्या थी? ये रोबोट की स्पेशलिटी ये थी कि वो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ था. इसका अर्थ क्या होता है? वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रोबोट बना था. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये है, और आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, कि वो रोबोट अपने एक्सपीरियंस से सीखने में सक्षम है. He learns from experiences. This is an essential difference between a human mind and a computer. Human mind is so fertile that based on experiences it learns, while computer learns only from instructions. आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, जिसे हिंदी में कहा जाता है तजुर्बा सिखा देता है. तजुर्बा सिखाता है किसी को? सिर्फ इंसान को. कंप्यूटर्स को तजुर्बा नहीं सिखाता. जब होंडा कंपनी ने ये रोबोट बनाया तब ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था. यानी होंडा कंपनी का ये कहना था कि इसमें अपने तजुर्बे से सीखने की सक्षमता है. इट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. वाओ. इसका उन्होंने उदाहरण दिया. रोबोट जापान से था, जहां पे ट्रैफिक लेफ्ट टू राइट चलता है. वो इंडिया में रोड क्रॉस करने गया. इंडिया में ट्रैफिक लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और कोई बार सर्कल्स में भी चलता है. यस और नो? राइट, दैट्स राइट. सो यहां पे ट्रैफिक बहुत अनऑर्गेनाइज चल रहा है. जापान में वो लेफ्ट टू राइट चलता है. उसके माइंड में ये था कि यहां भी फर्स्ट लेफ्ट देख के बाद में राइट देख के क्रॉस करना चाहिए. उसी तरह उसने क्रॉस किया एंड इट मेट विथ एन एक्सीडेंट. Next day, when it was given the task to cross the road, it was able to cross it successfully. Wow. Which means the robot learned from its experience. उसे इंस्ट्रक्शन देके प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है. वो नए इंस्ट्रक्शंस अपने तजुर्बे से गैदर कर रहा है और उसके मुताबिक उसे एग्जीक्यूट कर रहा है. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई स्टिल रिमेंबर, मेरा जब फर्स्ट जॉब था, एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. इनकम टैक्स में हम लोग रिटर्न फाइलिंग का काम करते थे, और तब रिटर्न फाइलिंग मैन्युअल हुआ करता था. यू हैव टू गो टू इनकम टैक्स ऑफिस एंड फाइल द रिटर्न देयर. मेरे बॉस कहा करते थे कि ये निकुंज है ना, निकुंज, इसका माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है. यू नो व्हाट? आई थॉट दैट ही वाज गिविंग मी अ कॉम्प्लीमेंट. निकुंज का माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है. इसका मतलब क्या? निकुंज को हाथ में रिटर्न दो और उसको कहो कि जाओ मुंबई में आयकर भवन में रिटर्न लेके जाओ, तो निकुंज आयकर भवन में रिटर्न लेके पहुंच जाएगा और थोड़ी देर बाद वही रिटर्न लेके वापस भी आ जाएगा. ही हैज टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन कि वहां रिटर्न लेके जाने के बाद उसे फाइल भी करो. If he is not given that instruction, then he will not execute it. Nikunj is unable to learn from experiences. Oh,
उसे 10 बार आयकर भेजो, एवरी टाइम यू हैव टू टेल हिम दैट रिटर्न लेके फाइल करके आओ. इफ यू डोंट टेल हिम फाइल करके आओ तो रिटर्न वापस लेके रिटर्न हो जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. वाव, यहां पे कंप्यूटिंग का एक नया दौर, एक नई एज शुरू होती है, जहां पे आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स या आपके कोई भी टास्क्स कंप्यूटर्स सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस. लेकिन सर वो कंप्यूटर्स, वो एल्गोरिथम्स को एक्सपीरियंस कहां से होगा? पूरे का पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है लर्निंग के लिए. These algorithms which are designed by people who are designing artificial intelligence software like ChatGPT, उनकी algorithms पूरे का पूरा इंटरनेट को एक डेटाबेस गिनती है, वो डेटाबेस स्कैन करती है और वहां से नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए रूल्स पिकअप करती है, सीखती है और आपके क्वेश्चंस आंसर करती है विदाउट यू having to give a specific instruction. ये artificial intelligence है. As I see the time, it's already 9 o'clock and जैसा मेरे दिमाग में था कि हम लोग शायद एक केस स्टडी बोथ डेटा एनालिटिक्स पे करें और एक केस स्टडी एटलीस्ट हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करें. However, for paucity of time, I will first have to request Alpesh ji, how long can I go on and how long can my participants survive? So depending on what is your capacity also to sit, I can go on, that is not a problem. Well, there is one more thought process behind having this lecture. Alpesh sir, if you permit, I can share that thought process over here. हम लोग ने ये देखा कि स्टूडेंट्स डेवलपमेंट महावीर जैन विद्यालय में, श्री महावीर जैन विद्यालय में किस तरह से किया जा सकता है. तो उसमें एक थॉट आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस और डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशंस, irrespective of the fact whether the student is doing engineering, whether the student is doing chartered accountancy course or any other course, इसकी एप्लीकेशंस उनको ज़रूरत पड़ेगी. So let us have some hands-on training on both business analytics, number one, and number two, artificial intelligence. When I'm saying artificial intelligence, I specifically mean application of artificial intelligence. We don't want to teach students on how to write those algorithms that can self-learn. किसी ने लिखा हुआ है, सर किसने लिखा हुआ है? चैट जीपीटी वालों ने लिखा हुआ है. लेकिन क्या हम उसे यूज कर पाएंगे? किन ऑब्जेक्टिव्स से यूज कर पाएंगे? जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो वो रिजल्ट्स को किस तरह से हम रीड करेंगे और रीड करके एक बिजनेस डिसीजन लेंगे? ये रिजल्ट्स को रीड करने में व्हाट आर द केवियट्स, व्हाट आर द पिटफॉल्स दैट यू शुड लुक फॉर? सर एआई ने रिजल्ट दिया, इसका मतलब तो सही दिया. ये मानने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है. एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी, राइट? एक्सीलेंट. सो देयर इज नो विजडम in just believing that the result of artificial intelligence that it throws is always correct. You have to take it with a pinch of salt. What are the caveats? So ये सारा ज्ञान अगर हम स्टूडेंट्स के साथ बांटें तो हम स्टूडेंट्स को बेहतर तैयार कर सकते हैं आने वाले युग के लिए. If there is one single factor which is going to impact businesses like none other, like never before, then it is going to be artificial intelligence, and not like it is going to be in next 15 years. That is not the case. Whether you are a chartered accountant, doctor, or an engineer, सबसे बड़ा खतरा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स या डॉक्टर्स को नहीं, सबसे बड़ा खतरा एआई को
एआई का टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिशनर्स को ही है, कोडर्स। जो लोग फिलहाल कोडिंग सीख रहे हैं या आगे चल के उनको कोडिंग में अपनी लाइफ गुजारनी है, किस तरह से एआई कोडिंग को इंपैक्ट करेगा, ये सब समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपने करियर्स को सही दिशा दे पाएं। The direction that we are going to go is far more important than the speed at which we are going there. सर, मैं बहुत तेज भाग सकता हूं, मेरे में बहुत क्षमता है, लेकिन अगर आप चेन्नई की ओर दौड़ रहे हो तो आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे, कितना भी तेज भागो। सो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन तय करना है और ये एक कॉन्शियस डिसीजन हमें लेना चाहिए कि एआई के इम्पैक्ट के कारण मुझे कौन सा डिसीजन। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग लॉयर, द इम्पैक्ट ऑफ एआई अगेन इन द लीगल फील्ड, वेदर इट इज ड्राफ्टिंग, वेदर इट इज नेगोशिएशन, वेदर इट इज एडवोकेसी और काउंसलिंग, इट्स गोइंग टू बी ट्रिमेंडस। क्या टाइप की इम्पैक्ट हो सकती है। सो इस पे डिटेल्ड सेशंस आइदर ऑनलाइन या हर ब्रांच में जाके हम लोग को रखने का ये एक विचार आया है। उसका एक कर्टन रेजर यहाँ पे अहमदाबाद में हम कर रहे हैं सर। या सो दैट्स एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। यू इंटरेस्टेड इन सीइंग some case study over here? Yes. But before I start that, any questions that you people may have? Let me try and address them. Of course, I'll try to address it to the best of my knowledge and capability. Please go ahead. Yes. Yes. मैं कंप्यूटर जैसा हूँ। यस, आप कंप्यूटर के जैसे हो, तो एक रीजनिंग नहीं, जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपको बोला है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, तो क्या पर्पस यही है कि वहाँ जाके आईटीआर फाइल करना है, या ये नहीं होगा कि वहाँ आपके बॉस आएंगे, right. वो आपको। What's your name? I've understood your question. Bhavya Shah. Sorry? Bhavya Shah. Bhavya Shah, I was making some underlying assumptions that I'm always sent to the income tax to file returns. That's it. That was the underlying assumption with which I said this scenario. So every time you send Nikunj to income tax department to file returns, you still have to instruct him that he has to file the return. You are with me? Yes. So if you don't instruct him, then it will not look back saying that अरे पिछली 2 बार मैं गया था इनकम टैक्स में, क्यों गया था, मैं तो रिटर्न फाइल करने गया था ना, तो ये हाथ में रिटर्न पड़ा है तो मैं फाइल करके आऊं। यू आर विथ मी? सो आई एम नॉट लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई आई एम अ कंप्यूटर। गेट इट? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। पर सर एक और अगेंस्ट पॉइंट है। हाँ, हर बार सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होते ना। नहीं होते, नहीं, वो मेरा assumption था कि सेम है। That is what I'm saying. That is what my assumption is while saying this scenario with you. Yeah. Any other question? Yes. सर आपने जैसा बताया कि एआई को सबसे ज़्यादा, मतलब एआई से सबसे ज़्यादा खतरा कोडिंग वालों को है, बट सर अभी जैसे देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और एआई हर सेक्टर में आ रहा है। हर जैसे सेक्टर में आ रहा है। आई एम ऑल्सो परसुइंग सीए, आई एम एन आर्टिकल एट अ फर्म। अभी वहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे टेली प्राइम अभी 5 जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें जीएसटीआर रिटर्न, उसमें मतलब वो खुद ही ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है। सब कुछ तो कर रहा है। कहाँ जाके सीए का काम आगे एक जगह पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सीए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऐसा देखते हैं तो जस्ट फॉर साइनिंग सीए रह जाएंगे कि बस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना है, आगे जाके एआई पूरा ऑडिट रिपोर्ट भी बना लेगा। तो फिर वाओ सो दिस वाज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग मी हियर। नाउ आवर माइंड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग कि मेरे करियर को खतरा कहाँ कहाँ है। यस, so this was the objective
सो आप महावीर जैन विद्यालय के स्टूडेंट हैं श्री महावीर नहीं, जैन एक्स के? स्टूडेंट, अभी मैं पीजी में रह रहा हूँ. हाँ, तो अपने कॉन्टैक्ट्स लगाइए और जब मैं सेशन अंधेरी या अहमदाबाद ले रहा हूँ तो वहाँ पे आइए, ये जानने के लिए कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहाँ और क्या इंपैक्ट होगी. आपका नाम मैं वापस एक बार भूल गया. अनंत जैन. आनंद जी, आई कैन कॉल यू आनंद. Yeah, sure. You're doing articleship, right? I did articleship between 99 to 2002. Right, which is 20 years back. So, Anand, if you look at the entire thought process behind having calculators and then computers, then you will realize that why did human endeavor to build calculators, and then after calculators why did we endeavor to build computers? Actually इसके पीछे deep thought process एक simple reason पे जाके अटकता है. Of course I may be committing the crime of oversimplification, but one of the essential dimension to this entire evolution is we want to make ourselves free, right? So routine mundane task या complex task जो machines कर सकती है, उसमें ह्यूमन का टाइम क्यों जाए? ये एक अंडरलाइन थॉट प्रोसेस है. आनंद, टिल हियर यू आर विथ मी 100%. एवरीबॉडी इज विथ मी. यस, आवर अंडरलाइन थॉट प्रोसेस इज आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम मंडेन वर्क, रूटीन वर्क, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम टीडियस वर्क, so that I can delegate it to a machine. You know what? ये ही इवोल्यूशन का प्रोसेस अब आगे बढ़ रहा है. अब हम लोग ये सोच रहे हैं, यार ऑडिट मैं करता था, मैं अपना टाइम ऑडिट में क्यों डालूं, ये भी मशीन पे छोड़ दूं ना. यू नो व्हाट, ये प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस जो आपने शुरू नहीं किया, जो आज से करीब 100 साल पहले शुरू हो गया था कि मैं मशीन्स की मदद से अपने आप को फ्री करूं, ये ही आगे बढ़ रहा है. और समय यही आएगा कि शायद मशीन्स टेक ओवर कर लेंगे सारा काम. क्यों? क्योंकि हम ही तो चाहते हैं. मशीन्स नहीं चाहते. हाँ, आप चाहते हैं. आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं. फ्री हो जाइए, गोवा के बीचेस पे बैठे गिटार बजाए और नारियल पानी सिप करें. नारियल पानी, हाँ, राइट. नारियल पानी सिप करें. सो दिस प्रोसेस कैनॉट बी स्टॉप्ड. दिस प्रोसेस कैनॉट बी स्टॉप्ड. इट इज हाउएवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट मी. ये मेरे पे क्या इंपैक्ट डालेगा, तो मैं उस दिशा में अपना करियर प्लान करूं. Have I been able to answer your question? Sure, sir. Thank you. Thank you for your feedback. Yes. Anybody else? Anybody else? Yes. Yes. So हम ऐसा क्या कर सकते हैं? Again, this question seemingly very very simple has a very detailed answer. हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हमें उन प्रोफेशंस को खोजना होगा जो अब तक एआई से मिनिमल इंपैक्ट रखते हो. ओके, सो व्हाट आर दोस प्रोफेशंस? से फॉर एग्जांपल मुझे लॉ तो करना ही है. आई वांट टू बी अ लॉ प्रोफेशनल. लॉ में कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां एआई की इंपैक्ट जबरदस्त होगी. उदाहरण के तौर पे ड्राफ्टिंग. यू नो, आई वाज वेरी गुड. In all humbleness, I'll say this. I was very good at drafting. Very good. Okay, you tell me a case and I will be able to draft it so well that it would impress most of the readers. But you know what? I now know that AI is better in drafting than me. बात खत्म हो गई. Let me not be emotional about this. I have a friend who is a chartered accountant. और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक और डायमेंशन है, वो कवि भी है. ही इज अ पोएट. सो एवरी ईयर ऑन हिज वाइफ्स बर्थडे ही राइट्स अ पोएम फॉर हिज वाइफ एंड गिव्स इट टू वाइफ.
पोएम रीड करती है एंड शी इज फाइन विथ इट, शी इज फाइन विथ। इस बार उसने पोएम वाइफ को दी और वाइफ ने रीड करके अप्रिशिएट किया कि वाओ डियर, क्या पोएम आपने मेरे लिए लिखी। यू नो व्हाट, इस बार वो पोएम चैट जीपीटी ने लिखी थी। चैट जीपीटी इज वेरी क्लियर, वी नो टू प्लीज योर वाइफ बेटर देन यू। ओके, इन पोएम्स वो फील्ड आप छोड़ दीजिए, दे विल विन हैंड्स डाउन। एंड इतनी पर्सनल पोएम उसने अपनी वाइफ के लिए लिखी, क्यों? क्योंकि आप उसको उस तरह से प्रॉम्प्ट्स दो, इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। आप अपनी वाइफ की क्वालिटीज उसे बताओ। जनरली हर वाइफ की सेम होती है। एनीवे, आई होप माई वाइफ इज नॉट वॉचिंग दिस ऑनलाइन। सो आप अपनी वाइफ की क्वालिटीज उसे बताओ और वो आपके लिए एक पोएम बनाएगी। आप एग्जैक्टली कहो कि शी इज अ हिंदू, जैन, गुजराती वाइफ, वो इस हिसाब से पोएम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको सीखने के लिए पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है, वो वहां से सीख रहा है। इट्स लर्निंग ऑन इट्स ओन एंड इट कैन बीट यू हैंड्स डाउन। सर, लॉ के प्रोफेशन में ड्राफ्टिंग पे खतरा है, तो किस पे खतरा नहीं है? यू नो व्हाट, negotiations. Negotiations require human interaction. टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन करना है, हाँ, इसमें ह्यूमन स्किल्स की आवश्यकता है। एज अ लॉयर अगर मैं अपना करियर प्लान कर रहा हूं तो आई विल बी बेटर ऑफ इन सिलेक्टिंग नेगोशिएशंस देन ड्राफ्टिंग। आनंद, दिस गिव्स यू वन मोर डायरेक्शन। यस, you really need to understand where the impact of AI is going to be highest and plan your careers so that you remain relevant. One last wait, have I been able to answer your question? Thank you for the feedback. Excuse me, sir. One last question. Yes, I would please. like to add a different perspective to his question, if you may allow. Yes, please go ahead. तो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो एआई है उसकी वजह से हमारा जो कोडिंग का जॉब है वो चला जाएगा। बट व्हाट आई बिलीव इज, लाइक अभी हम ट्रांजिशन के फेज में है, जो हम लाइक एआई बढ़ रहे हैं और हम ट्रांजिशन वाला फेज में है। लेकिन जब हम बड़े होंगे, लाइक व्हेन वी विल बी अराउंड 30, 35, 40, दैट विल बी कॉमन, एआई विल बी एवरीवेयर, एवरीथिंग विल बी कॉमन विथ एआई। सो तभी भी जो ह्यूमन है उनको चाहिए कि और कुछ ईजी बनाते हैं, कि भाई और कुछ नया कोई समथिंग करते हैं, कोई भाई और ईजी हो, और हमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम करना पड़े। सो उसके बारे में और आगे कुछ समथिंग होगा, समझे? लाइक जब मोबाइल नहीं थे तब एकदम अलग फेज था, ट्रांजिशन आया, अब सबके पास मोबाइल है, सो अब कोई एआई चाहिए कि भाई जो इजी टास्क करे। सो एवरीथिंग विल बी लाइक इवॉल्विंग एवरीथिंग। सो फिर से एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ। Very interesting. Deserves a round of applause. I read somewhere, it's a quote by Einstein, everything must be made as simple as possible, not simpler. This quote says that any problem is multidimensional. उसके कई सारे पहलू हैं प्रॉब्लम्स के। अगर आप वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम सिंपल दे रहे हो तो शायद आप कुछ डायमेंशंस को इग्नोर कर रहे हो। आप लोग हो मेरे साथ हो आप लोग? इनडायरेक्टली एक्चुअली व्हाट आइंस्टाइन इज स्टम्बलिंग अपॉन इज द फिलोसॉफी, द जैन फिलोसॉफी ऑफ अनेकांतवाद, दैट ट्रूथ इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, सो देयर विल बी सो मेनी एस्पेक्ट्स टू अ प्रॉब्लम। यू कैन मेक लाइफ सिंपल बट नॉट सिंपलर, एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। कुछ उसके डायमेंशंस को एड्रेस करना ही पड़ेगा। We will have to address those dimensions. Very interesting talks these are, and these are very enriching. Alpesh, yes, please go ahead. Nikunj, I want you to throw some light on the same AI. Like, if we are experienced, we'll use AI. So that is for our age. Yet the students have not come to that stage. But if I say, if these students have been inspired by today, what Hitesh Bhai said, that think something which, 10 days ago he started thinking impossible. Right. Like Elon Musk.
can you throw some light that can I have telepathics is a future to make it more simpler? Can that level go? What do you mean by telepathics? And Telepathics is like I thought and you are doing it. That's what is to come. That's I thought. Because and 74 mobile was there, 94 we got the first wow, one. wow. So telepathics will become an approach, a means of communication. You just think and I know now what you're thinking. What you're thinking. Sir, what's your good name? Kashyap Kapadia, I'm Superintendent of Bombay. Super. Kashyap bhai, a very relevant question. क्या telepathics ये भी AI इंस्पायर्ड हो सकता है? क्या AI वेंचर आउट करेगा टेलीपैथिक्स को आगे बढ़ाने में? मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, एंड इट हैज लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन माई माइंड, दैट even before you say that it cannot be done, someone is already doing it. अगर आज यहाँ पे मैं बोल के निकल जाऊँ कि यार ये संभव नहीं है, you know what, ये संभव नहीं है, ये सेंटेंस में कंप्लीट करूँ ना, उससे पहले कोई ना कोई ये कर रहा है और शायद कंप्लीट करके भी देगा. My friend said that जब हम 30-35 के होंगे, people always overestimate what will be done in short run and underestimate what will be done in the long run. You know, ये जो मैं consequences की AI के consequences बात कर रहा हूँ ना, वो आज 20 साल का बच्चा 35 यानी 15 साल बाद आने वाले consequences की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ये consequences next 2, 3 या 4 साल में आ जाएंगे. 15 साल ये तो बहुत बड़ा पीरियड है. दिस अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड. हमारी तकलीफ यह है कि हम आगे लॉन्ग रन में क्या होने वाला है वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और शॉर्ट रन में हम क्या कर पाएंगे वो हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं. नेक्स्ट 2 महीने में मैं जीमेट क्रैक कर दूंगा. यार नेक्स्ट 2 महीने की पढ़ाई में जीमेट क्रैक नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है दोस्त. यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ. शॉर्ट रन में ओवर एस्टिमेशन की एरर्स हम करते हैं और लॉन्ग रन में अंडर एस्टिमेशन की एरर्स हम करते हैं. सो दीज आर थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस मस्ट टेक केयर ऑफ व्हेन वी आर प्लानिंग अवर करियर्स. AI is not 15 years hence. The implications are not 15 years hence. The implications are in next 2 years, in next 3 years. Tremendous implications. Tremendous implications. And while I'm saying things lightly, कि आप गोवा जाके गिटार बजाएंगे बीच पे बैठ के और नारियल पानी पिएंगे, while I'm saying things lightly, I'm not saying light things. These are not light things. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम फ्री हो जाए. हम फ्री हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे कि हम गेनफुली और प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड रहे. ये हम सबको ढूंढना है, साथ मिलके खोजना है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग. It is extremely difficult, friends. Let me very honestly tell you, it is extremely difficult to be on the dais where illuminaries and illustrious alumni of Shri Mahavir Jain Vidyalaya, like Hitesh Bhai and Jain Bhai have spoken. However, I have in my own genuine and sincere way tried to share my insights, and if you all have benefited even to the extent of 10% of what you already knew, then I would consider all my efforts a grand success. I look forward to connecting you with each one of you sometime next, but sometime soon. तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें. Do have a pleasant evening ahead. Thank you and Jai Hind. Thank you. ફરી એકવાર હું આપ સૌનો આભાર માંગુ છું. આપ સૌ મુંબઈ, અંધેરી, પૂનાથી દરેક જગ્યાએથી પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને